Good morning, students. Today we are going to discuss a topic of M.Sc. fourth semester, digital electronics, delta modulations. Actually, delta modulation is the advanced version or modification version of differential pulse code modulation. जैसा कि स्टूडेंट्स हमने देखा था कि डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन ने पल्स कोड मॉड्यूलेशन की कुछ चीज़ों को रेक्टिफाई किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में जो बैंड विड्थ थी उसे कांस्टेंट रखने का प्रयास किया गया था, जहां दो डेटा का डिफरेंस हम लेते थे, उनके बिट्स को कम करते थे, जिससे कि बैंड विड्थ भी क्या होती थी, कांस्टेंट हो पाती थी। बट डेल्टा मॉड्यूलेशन और अधिक एडवांस या मॉडिफाई फॉर्म है डीपीसीएम का। हम कह सकते हैं कि इसमें जो डिफरेंस हम लेते थे डीपीसीएम में, उस डिफरेंस को केवल वन सिंगल बिट से इनकोडेड करते हैं। दैट मीन्स द वन सिंगल बिट डीपीसीएम इज डेल्टा मॉड्यूलेशन। डीपीसीएम में वन सिंगल बिट तो नहीं, 2 बिट 3 बिट इस तरह से हम डेटा को ट्रांसफर करते थे, लेकिन डेल्टा मॉड्यूलेशन में हम सिंगल बिट ही ट्रांसफर करेंगे, जिससे बैंड विड्थ जो है वो मेंटेन रहेगी। तो चलिए हम आगे इसे देखते हैं कि क्या होता है। तो डेल्टा मॉड्यूलेशन was first introduced in 1940 as a simplified form of PCM, which required a difficult to implement A to D converter. So a digital signal is superior to analog signal. जैसा कि हम जानते हैं कि आज के सिनारियो में डिजिटल सिग्नल जो है वो एनालॉग सिग्नल की तुलना में बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। सो इट इज़ जिसका नॉइज बहुत कम रहता है एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल, और जिसे इजीली रिकवर्ड किया जा सकता है। For this reason, the tendency of today into the change in analog signal to the digital signals. So here we discuss about the DM, that means delta modulation, and its signal quantization noise ratio. So signal quantization noise ratio के बारे में हम अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ डेल्टा मॉड्यूलेशन के बारे में। Now what is the definition? So a delta modulation is analog to digital and digital to analog signal conversion techniques used for transfer data. ओके, ये तो रही सिंपल बात। लेकिन अगर हम डेल्टा मॉड्यूलेशन की बात करें कि डेल्टा मॉड्यूलेशन को हम इजी वे में कैसे इंडिकेट करें या डिफाइन करें, तो ये उसकी डेफिनेशन होगी। डेल्टा मॉड्यूलेशन इज ए डीपीसीएम स्कीम इन विच द डिफरेंस सिग्नल डेल्टा टी is encoded into just a single bit. This is very important. So DM is the simplest form of the differential pulse code modulation. So differential pulse code modulation जो हमने पढ़ा, उसका जो simplest form होता है वो होता है delta modulation. Now DM is used to achieve high signal to noise ratio. Some points of the DM is here. DM use the simplest possible quantizer, namely a 2 level, that means 1 bit quantizer, which I said. In DM, if n equal to 1, where n is the number of bits, it transfer only one bit data. This is very important for us, which overcome the drawbacks of the DPCM by DM. So that the DM is also known as the 1 bit DPCM. So what is the 1 bit DPCM? 1 bit DPCM is called the delta modulation. Now this is the block diagram of the delta modulator, which I explain in next slide. Here a comparator is used, sample and hold circuit. This is the output S0, and here a different thing is the up and down counter, which is not used in DPCM, but in delta modulation the up and down counter is used, and a D to A converter. Everyone know about the D to A converter. Uh, uh, to uh, to reach or to push the MCAP T towards the MT. So simply let's see the comparator. It makes comparison between the inputs. It has one fixed output VH and a difference is VL. So when we get the VH, when the MT is greater than from MCAP T. MCAP T is the quantized signal which we get from the output, and MT is our baseband signal.
सो कंपैरेटर एक्चुअल में जो कंपेयर करता है वो एम टी और एम कैप टी को कंपेयर करता है, और एम टी यदि एम कैप टी से ज़्यादा है तो रिजल्ट्स में हमें वी एच मिलेगा, और यदि एम कैप टी एम टी से छोटा है तो हमारे पास वी एच जो रिजल्ट मिलेगा वो वी एल मिलेगा. सो ओनली द वर्क ऑफ द कंपैरेटर हेयर टू नो अबाउट द विच वन इज लार्ज, एम टी लार्ज और एम कैप टी लार्ज. नेक्स्ट वन जो डिफरेंट थिंग थी हमारे पास वो थी अप डाउन काउंटर. The up-down counter increment or decrement its count by one at each active edge of the clock waveform. Active edge का मतलब आप सभी जानते हैं either rising or falling. So in the present case, counter serves an accumulator. It adds or subtracts the increments as directed and store the accumulator result. So यहाँ जो काउंटर हम यूज कर रहे हैं जो कि डीपीसीएम में accumulator, predictor circuits ये सब हुआ करता था, तो उसके प्लेस पे accumulator के प्लेस पे यहाँ काउंटर काम कर रहा है, और काउंटर accumulator की तरह ही ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करता है, और साथ ही साथ वो स्टोर भी करता है रिजल्ट्स को. तो काउंटर का ये वर्क है. D2A converter convert the digital output of the counter का जो डिजिटल आउटपुट हुआ है उसे एनालॉग क्वांटाइज्ड अप्रोक्सीमेशन दैट मींस एम कैप टी देता है. बिकॉज जो कंपैरेटर है वो एम टी और एम कैप टी दोनों ही एनालॉग फॉर्म में उसको चाहिए, तो जो काउंटर से निकला हुआ डिजिटल सिग्नल्स होता है उसे ये D2A कन्वर्टर जो है वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके जो क्वांटाइज्ड सिग्नल एनालॉग फॉर्म में होता है वो देता है. Now when output S0 is the level of VH, हमने अभी पढ़ा कि जो आउटपुट हमारा था वो अगर VH है तो काउंटर काउंट्स अप, नेचुरली हाई के लिए अप करेगा और L के लिए दैट मींस लो के लिए वो क्या करेगा डाउन. Here counter replace the accumulator which we already discussed in DPCM since adds or subtract increment as directed and store the accumulator results. This one is the repeated. The digital output of the counter is converted to the analog quantized approximation MKT by D2A converter. Now, here we will see about the how the delta modulation process is occurs. So, for this, a time proceeding T1. We take here for time proceeding T1. We find MT is greater than from M cap T. In you can see in this one is the T1. In T1, it is clear the MT. This one is MT and this is the M cap T. So MT is greater than from M cap T. So what happened? So S0 is equal to VH. So this one is the VH and this is the VL. So higher is the VH and lower is the VL. So that's why आप देख सकते हैं कि जब T1 की बात हम कर रहे हैं तो MT जो है वो M cap T से ज़्यादा है तो हमें हायर कंडीशन मिली. That means rising edge मिला. So when the active clock edge appear, the counter is incremented and immediately the signal M cap T jumps up by an amount of equal to the step size. तो ये जो step size के amount के बराबर यहाँ पर क्या देखने को मिला, हमें jump देखने को मिला. So next one हम देखते हैं इसमें कि जब हम T2 की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे T2 की बात करेंगे, तो T2 की कंडीशन में भी हमारा यहाँ पर अभी है आपका M cap T, तो MT फिर से ग्रेटर होगा तो फिर से हमें एक राइजिंग एज लेना पड़ेगा. ये राइजिंग एज हमने ले लिया. लेकिन आप देख सकते हैं कि जो T3 का केस है उस T3 के केस में आप देखिए कि हमारा M cap T ग्रेटर हो चुका है MT से, तो फॉलिंग एज में जाना पड़ेगा, तो काउंटर फॉलिंग एज करेगा जिससे हमारा M cap T यहाँ आ जाएगा. सीन्स आप फिर देख सकते हैं कि अब MT क्या हो जाएगा, हो चुका है ग्रेटर हो चुका है M cap T से, तो उस कंडीशन में हमें फिर से एक जंप मिलेगा, राइजिंग इंक्रीमेंट जंप मिलेगा, वो यहाँ पर मिलेगा, है ना. और फिर इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि जब इस केस यहाँ पर ये वाले केस में हम देख सकते हैं कि फिर से M cap T जो है वो लेस हो चुका है, तो वो फिर क्या करेगा, जंप करेगा. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि M cap T जो है वो MT को क्या कर रहा है, वन बीट के यानी कि वन बीट यानी कि एस स्टेप सिंगल स्टेप के साथ वो उसे क्या कर रहा है, उसका उसको फॉलो कर रहा है, उसके पास जा रहा है. जैसा कि अब मैंने अभी डिस्कस किया कि T2 we still find the MT is greater than MT, so we get the VH and there is another upward jump is M cap T which already I discussed here in last slide. At T3 is different, becomes the counter decrement and there is a consequent downward jump, जैसा कि अभी हमने उस last slide में भी देखा.
So stepwise approximation of m cap t and mt here. Okay, when the m cap t has caught up the mt, and even though mt remains unvarying, m cap t hunts the swinging up or down above the above and below of the mt. So ये फिगर हमें क्या बता रहा है, देखिए ये जैसे हमारा mt है, तो पहले तो mt हमारा बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू m cap t, तो कंटिन्यूअसली हमें क्या मिलेगा, राइजिंग जंप मिलेगा। आप देख सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में जंप मिलेगा। जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन पहुंच जाता है हमारा कहाँ पे, एम टी को कैच कर लेता है एम कैप टी, तो उस कंडीशन में अगर एम टी कॉन्स्टेंट है तो आप देख सकते हैं कि एम कैप टी जो है वो अप डाउन यहाँ पर चल रहा है, अप डाउन, क्योंकि एक बार राइजिंग हो रहा है, एक बार फॉलिंग हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं हंटिंग ऑफ एम कैप टी अबाउट द एम टी। मतलब एम कैप टी जो है वो एम टी का शिकार कर रहा है, हंट कर रहा है उसे कंटिन्यूअसली। आप देख सकते हैं ये तो ये फिगर है एक्चुअली हंटिंग ऑफ एम कैप टी अबाउट एम टी। The slope overload error, the one of the important disadvantage of the delta modulation हम कह सकते हैं इसको। जो फिगर shows a signal mt which over an extended time exhibit a slope which is so longer than m cap t. So it is clear mt का slope इतना ज़्यादा है कि m cap t जो है वो जो since we studies about the delta modulation और हमें मालूम है कि delta modulation सिंगल स्टेप ही चलेगा, तो सिंगल स्टेप चलने के बाद भी जब वो उसे कैच नहीं कर पाता एम कैप टी, तो दिस इज कॉल्ड द स्लोप ओवरलोड एरर। दैट मीन्स कभी कभी क्या होता है कि कोई एम टी यानी कि जो हमारा बेस बैंड सिग्नल है वो उसका स्लोप इतना ज्यादा है कि एम कैप टी जो है वो उसे क्या नहीं कर पा रहा है, उसे कैच नहीं कर पा रहा है। तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। दैट मीन्स वी गेट द सम वैल्यू ऑफ एम टी माइनस एम कैप टी। So MT minus M cap T becomes progressively large. The MT and M cap T are described as slope overload error. So ये excessive disparity होती है और यही एक सबसे बड़ा disadvantage है डेल्टा मॉड्यूलेशन का, जो रेक्टिफाई होता है एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन में, हम देखेंगे उसे। Now slope overload error occurs whenever MT has a slope larger than the slope S upon TS, which can be sustained by the waveform M cap T, जिसे हम एक फॉर्मूले से इंडिकेट करते हैं कि जब कभी भी स्लोप जो है वो MT का S by TS से ज़्यादा हो जाता है तब हमें हम कह सकते हैं कि एरर फाइंड आउट होता है। तो स्लोप ओवरलोड कैन बी अवॉइडेड अगर s बाई टी की वैल्यू जो है वो d बाई डी टी एम टी से ज़्यादा हो। न्यूमेरिकली अगर इसे हम देखें तो ये फॉर्मूला अगर अप्लाई होता है तो उस कंडीशन में स्लोप ओवरलोड एरर जो है वो अवॉइड किया जा सकता है। क्वांटाइजेशन नॉइज इन डीएम जो होता है उसे फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। Now advantage of DA, one of the major advantage of delta modulation is consumption of low bandwidth। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो DPCM में प्रॉब्लम थी कि बैंडविड्थ जो है इंक्रीज हो सकती है क्योंकि बिट्स इंक्रीज होगी, बट यहाँ सिंगल बिट DPCM है इसलिए बैंडविड्थ जो होगी वो लो होगी। डेटा कैन बी टाइमली डिलीवर्ड बाय यूजिंग इट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक, डेल्टा मॉड्यूलेशन जो होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है। और डिसएडवांटेज जैसा कि हमने देखा, slope overload distortions which occurs due to the large dynamic range of the input signals. So if the input signal have large dynamic range, input signal बहुत ज़्यादा बड़ा slope कर रहा है तो उस condition में slope overload error होगा ही, ये एक disadvantage है। The other disadvantage is the production of granular noise is using it, which usually occurs as the result of the large step size. So large step size के कारण जो अप डाउन वाली जो बात है, वो जो अल्टरनेटिव अप डाउन होता है उसके कारण जो एक नॉइस का एरर जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेनुलर नॉइस, वो एक डिसएडवांटेज है क्योंकि इसमें हमें अल्टरनेटिव अप डाउन देखने को मिलता है। तो ये था डिसएडवांटेज ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन। आई होप कि आप लोगों को डेल्टा मॉड्यूलेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।